Now we are going to see question number 7. What is the question number 7? It is telling them the sum of the three consecutive multiples. Consecutive. They have talked about consecutive. Consecutive का मतलब मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट नंबर क्या लेना है. Your first number will be x. Then your second number will be x plus 1, and your third number will be x plus 2. ठीक है. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. ओके. जैसे 1 2 3 है उसी तरह से. तो हम लोग ने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए. दैट इज x plus 1 and x plus 2 are the 3 consecutive numbers. Now they are not telling just the consecutive. They are telling about these 3 consecutive numbers are the multiple of 8 also. Then they have to multiply it by 8. They are telling that these 3 numbers are multiples of 8. Okay. Now what is the number? It is 8x. It is 8x plus 8 and it is 8x plus 16. These are your 3 consecutive multiples of 8. Okay. Now when you add these 3 numbers which are multiples of 8 and which are consecutives, then you will get 888 as the result. Now start adding the first number plus second number plus third number. If you add this 3, you will get the sum as 888 according to question. Okay. Then what is your first number? Your first number is 8x. What is your second number? It is 8x plus 8. And what is your third number? It is 8x plus 16. It is equal to 888. Now add the variables 8x, 8x, 8x. Then 8x plus 8x is 16x. 16x plus 8x is 24x. Plus now we have to add the constants. This is the constant 8 and 16. What is the sum of 8 and 16? It is 24 is equal to 888. Now 24x is equal to 888 माइनस ये प्लस में है इधर तो इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू के. तो देन इट विल कम इन माइनस 24. नाउ 24x is equal to 888 minus 24. How much it is? 4 6 8. Then 24x is equal to 864. Then x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 864 get divided by 24. Okay. Now कट करो इसे. देन 8 से 3 टाइम्स और 8 से ये 108 टाइम्स. देन 3 से 1 टाइम्स और 3 से 36 टाइम्स है ना. देन what is the value of x we are getting? It is 36. 36 upon 1 36. Right. x की वैल्यू आ गई. Now what is your first number? Your first number is x. Right. So no 8x. Now multiply 8 into x. What you will get? 8 into x की वैल्यू कितनी है? 36. तो क्या आ जाएगा? 36 into 8 is 240 plus 48. It is 288 is your first number. What about the second number? Your second number will be 8x plus 8. What is the value of 8x? We have 288, right? Sorry, 288 plus 8. Add करो.
you will get 296. Now coming to the third number. What is your third number? It is 8x plus 16, right? What is 8x? 288 plus 16. 8 plus 6 is 14, 14, and 8 plus 1 is 9, plus 1 10, 304. Means your answer will be this. Your first number is 288. The second number will be this 296, and your third number will be 304. Okay. When you add this 3, you are going to get 888, right? तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है. ठीक है. Your first number is coming as 2888, your second number is coming as 296, and your third number is coming as 304. Okay. Now coming to the question number 8. What is the question number 8? 3 कंजुगेटिव. फिर से कंजुगेटिव की बात की और 3 कंजुगेटिव की बात की. तो your first number will be x, your second number will be x plus 1, and your third number will be x plus 2, right? So these are the 3 conjugative numbers are such that when they are taken in increasing order, जब इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाए. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाए मतलब सबसे पहले छोटे वाले टर्म को लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाले टर्म को, फिर उससे बड़े वाले टर्म को. ठीक है. When you are taking the numbers in this order and multiply by 2, 3 and 4 respectively. रेस्पेक्टिवली कहने का क्या मतलब हुआ कि जब इस टर्म में हमने नंबर ले लिया, ठीक है, x ले लिया, x प्लस 1 ले लिया एंड x प्लस 2 ले लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है 2 से. मतलब छोटे वाले नंबर को 2 से, उसके बाद वाले नंबर को 3 से, और उसके बाद वाले नंबर को 4 से. यही होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब. मीन्स क्रमशः. मीन्स फर्स्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन व्हाट यू आर गेटिंग? 2x, 3x प्लस 3, 4x plus 8, right? When you multiply it by 2, 3 and 4 respectively, these are the numbers you will get. Now after multiplying it, when you add these 3 numbers, 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8, then what is your sum? Your sum is, when they added up, you get 74. Your sum is 74. Now start solving this equation. Then you have 2x, 3x and 4x are the variables. Then 2x plus 3x is 5x, 5x plus 4x is 9x. 9x plus, now you have to start adding up the constants. What are the constants? 3 and 8. 3 plus 8 is 11 is equal to 74. Then 9x is equal to 74 minus 11. ये प्लस में है तो इज इक्वल्स टू के साइड में माइनस में हो जाएगा. Then 9x is equal to 63. Then what is the value of x? It is 63 by 9. ओके, ये मल्टीपल में है तो इधर आके डिवीजन में 1 टाइम इट इज 7 टाइम. देन x की वैल्यू क्या आ गई? 7. ओके, नाउ व्हाट आर दिस नंबर्स? व्हाट इज योर फर्स्ट नंबर? योर फर्स्ट नंबर विल बी x, है ना? x है ना फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर x है. x की वैल्यू क्या आई है? 7 आई है. व्हाट इज योर सेकेंड नंबर?
Your second number is x plus 1. What is x? 7 plus 1. Then you will get 8. What is your third number? It is x plus 2. Then 7 plus 2. Then it is equal to 9. Then what are the numbers? 7, 8 and 9. These are the 3 consecutive numbers. ओके 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है ना. These are the 3 consecutive numbers. Such numbers are called consecutive numbers. Now start solving the question number 9. What is question number 9? The ages of Rahul and Harun. Age of Rahul by age of Harun. रेशियो गिवन है ना. हाँ. The ages of Rahul and Harun are in ratio. रेशियो में डिवाइड करके लिख देंगे अपॉन में, ऊपर में एज ऑफ राहुल, नीचे में एज ऑफ हरून इज गिवन है. दैट इज द रेशियो गिवन 5:7. These are the ratio, not the actual value. Okay. Now what is the age of Rahul? Age of Rahul is 5x. ठीक है. ये रेशियो में है तो डायरेक्टली 5 नहीं लेना है. That doesn't mean that the Rahul's age is 5 when it is in ratio. You have to take it as 5x. ठीक है. Now what is the age of Harun? तो रेशो में ये भी गिवन है तो 7x. ठीक है. Now 4 years later, अभी से 4 साल बाद. Then 4, these are the present age. अभी की एज है 4 years from now. अभी आपकी एज जो भी होगी 4 साल के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी? जो अभी आपकी एज है उसमें आप प्लस कर दोगे ना 4 years. दैट विल बी योर एज आफ्टर 4 years, राइट. हाँ. तो राहुल की एज अभी 5x है तो 4 साल के बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू जो अभी की एज है उसमें हम प्लस कर देंगे 4 years, राइट. दैट इज द एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 years. एंड व्हाट इज द एज ऑफ हरून आफ्टर 4 years? तो अभी की जो एज है दैट इज 7 है, उसमें प्लस कर देंगे 4 years, राइट. दिस आर द एजेस आफ्टर 4 years. 4 years later the sum of their ages will be 56. 4 साल के बाद जब हम दोनों के एज को ऐड करते हैं, सम करते हैं आफ्टर 4 years, then their sum is 56. Means now we have to, according to the question, now we have to add the age of Rahul and age of Harun. प्रेजेंट एज ऐड नहीं करनी, 4 साल के बाद वाली एज ऐड करनी है. तो 4 साल के बाद वाली एज क्या है? इट इज 5x plus 4 एंड इट इज 7x plus 4. इस वाले एज को ऐड करना है. ठीक है. 5x plus 4 plus 7x plus 4. Then what is the, when you add this two ages, what is the result? 56, right. Now start solving this. तो 5x और 7x ऐड करने पे कितना हो जाएगा? It is equal to 12x. Now start adding up the constant. 4 plus 4 is 8 is equal to 56. Then 12x will be equal to, ये प्लस में है इधर तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 56 minus 8, what it is? 48. Then x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48 get divided by 12, right.
क्योंकि 12 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स टू के साइड आके ये डिवीजन में हो जाएगा. देन 12 से 1 टाइम एंड 12 से 4 टाइम. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो प्रेजेंट एज क्या थी? 5x एंड 7x. 5x इज द एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, एंड 7x इज द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण. तो इनके प्रेजेंट एज के बारे में पूछा गया है. तो एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x. तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है. दिस इज इक्वल टू 4. देन इट इज इक्वल टू 20 years and age of Harun is equal to 7x, which is equal to 7. x की वैल्यू 4 है. then 7 into 4 is 28. then you will get 28 years. These are the present ages of Rahul and Harun, right? The question is solved. Now we are going to solve the next question. What is the next question? We have question number 10. Question number 10 में क्या कहा जा रहा है कि number of boys and girls in a class is 7:5. यदि रेशियो वाला प्रॉब्लम है ना? What is the ratio and among what it is given? The number of the boys and girls और boys के बीच में. तो सबसे पहले number of boys by number of girls. क्या रेशियो गिवन है? It is 7/5. ओके. देन रेशियो में गिवन है तो एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे? 7x and actual number of girls are 5x, right? These are the actual number of boys and this is the actual number of boys, this is the actual number of girls. Now the number of boys is 8 more than the number of girls. Okay. According to question, what is given? Number of boys is equal to whatever the number of girls you have, number of girls plus 8. ठीक है, क्योंकि यहाँ मोर देन लिखा है तो यू विल गिव द साइन ऑफ प्लस. ठीक है. नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8. एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज? एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज इट इज 7x. व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स? इट इज 5x and you have to add 8 over here. Now solve it. तो 7x और इधर 5x, तो ये 5x को इक्वल्स टू के इस साइड ले आओ. ठीक है. तो 7x माइनस सारे वेरिएबल को एक साथ करने हैं तो ये 5x इधर चला जाएगा इक्वल्स टू के. तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू व्हाट इज द कांस्टेंट यू हैव? 8. ठीक है. तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 8. देन x की वे क्या वैल्यू हो जाएगी? 8 और ये मल्टीप्लिकेशन में है 2 तो आ गया डिवीजन में. 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम. तो x की क्या वैल्यू आ गई? 4. ओके. हाँ. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास. ठीक है. तो यू हैव टू गेट नंबर ऑफ बॉयज क्या है एक्चुअल? 7x है ना. हाँ. एंड x की वैल्यू क्या है? 4 है. 7x x की वैल्यू क्या है? 4 है. 7 into 4. Then what is the number of boys in the class? It is
28. What about the number of girls? It is equal to 5f, which is equal to 5 into what is the f? 4. This is equal to 20. ठीक है, तो 20 नंबर ऑफ गर्ल्स है और 28 नंबर ऑफ बॉयज है। तो क्लास की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो क्लास की स्ट्रेंथ, क्लास में कितने बच्चे हैं, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। तो कितने बच्चे हो गए, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों का ऐड कर देंगे, then you will get the strength of class. Then what is the number of boys? It is 28 plus what is the number of girls in the class? It is 20. Then what is your answer? 48, right? Then 48 is the strength of class. Now start solving the next question. What is, now take the question number 11. What is the question number 11? Bachung's father is 26 years younger than the Bachung's grandfather. ठीक है, तो हम लोग कैसे इसे किसकी एज को अननोन लेंगे? तो सी हो बाचुंग्स एज के बारे में, बाचुंग्स फादर्स के एज के बारे में कुछ गिवन है, दैट इज गिवन दैट कि वो बाचुंग्स के ग्रैंडफादर के जो एज है उससे 26 ईयर्स यंगर है, राइट? तो किसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो उनके ग्रैंडफादर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, किसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है? ग्रैंडफादर के बारे में। देन व्हाट इज योर एस? लेट ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू एस। ग्रैंडफादर की एज को हमने एस मान लिया। देन व्हाट इज द बैचुंग फादर्स एज? फादर्स एज is equal to what it is given? Bachung's father is 26 years, 26 years younger. क्या है? younger है। किससे? Bachung's के ग्रैंडफादर से। तो S younger है इसलिए माइनस, और कितने years younger है? 26 years, right? This is the Bachung's father's age, right? अब next statement, and 29 years older than the Bachung's, और Bachung's जो फादर की एज है, बाचुंग्स की फादर की एज है, दैट विल बी इक्वल टू 29 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर है इसीलिए प्लस दिया, ठीक है। देन हुम? बाचुंग्स, ठीक है, हाँ। देन व्हाट इज द फादर एज यू हैव? यू हैव एस माइनस 26 इज इक्वल टू 29 प्लस बाचुंग्स एज, राइट? हाँ। देन ये इधर प्लस साइन के साथ है, तो बाचुंग्स की एज क्या हो जाएगी? एस माइनस 26, और ये प्लस साइन के साथ है 29, तो इस साइड आएगा इक्वल्स टू के, तो माइनस साइन, ओके, इज इक्वल टू बाचुंग्स। देन एस माइनस, अब देखो यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी साइन है। जब साइन माइनस माइनस हो तो ऑपरेशन क्या होती है? प्लस की होती है, और इसमें साइन क्या आता है? माइनस, ठीक है। मतलब जैसे -2 है और -5 है, तो माइनस आ रहा है ना दोनों के आगे, तो ये क्या होगा? ऐड होगा। ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? ऑपरेशन परफॉर्म विल बी प्लस, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो 2 और 2 में 5 ऐड करेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू? 7, और साइन क्या होगी उसके आगे? माइनस, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर? -7। तो इसी तरह यहाँ भी करते हैं, -26 -29, राइट? तो ऑपरेशन हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? प्लस की। देन 26 प्लस 29, व्हाट इज द आंसर? 55, राइट? और साइन किस चीज की होगी? ऑपरेशन तो हमने प्लस किया, साइन किस चीज की होगी? माइनस की, ठीक है। तो -55, तो S माइनस
55 इज इक्वल टू बायचुंग्स एज। ठीक है, तो बायचुंग्स की एज पता लग गई, बायचुंग्स की फादर की एज पता लग गई और बायचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज पता लग गई। अब क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री, जब हम तीनों के एजेस को सम करेंगे देन यू विल गेट 135। नाउ यू हैव टू add the ages of all three. Then what is the age of grandfather? It is S. What is the age of father? S minus 26. And what is the age of Baichung? It is S minus 55. When you add all this, what is the sum? 135, right? हाँ, तो आप वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करो, तो S plus S plus S. What is the value we are going to get? S plus S is 2S, 2S plus S is 3S. Now minus 26 minus 55, तो ये minus 26 है और minus 55 है, माइनस का साइन है ना दोनों साइड, हाँ ठीक है, तो माइनस का साइन है दोनों साइड। ओके, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, प्लस की, देन 26 प्लस 55 81, और साइन आगे में कैसी होगी, माइनस की, तो माइनस 81 इज इक्वल टू 135। नाउ 3s इज इक्वल टू 135, और ये 81 माइनस साइन के साथ है तो उस साइड चला जाएगा तो प्लस 81, देन 3s इज इक्वल टू, व्हाट इज द आंसर, 5 plus 1 is 6, 8 plus 3 is 11, and 1 plus 1 is 2, 216. Then x is equal to 216 get divided by 3. अब इसे चेक करने की 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 से डिविजिबिलिटी की रूल क्या है कि when you add the digits of the given number, जैसे यहाँ 216 है तो इसमें डिजिट्स क्या क्या है, ये एक नंबर है ना, तो इसमें डिजिट्स क्या क्या हैं, 2, 1 and 6 are the digits in this number. Okay, हाँ, when you add the digits of the given number, what you are going to get, 2 plus 1 3, 3 plus 6 is 9, तो 9 क्या डिविजिबल है 3 से, ये चेक करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो 9 डिविजिबल है ना, 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है, तो ये डिविजिबल है, ठीक है, तो 3 से 1 टाइम और 3 से 72 टाइम, राइट, देन x की क्या वैल्यू आ गई, s इज इक्वल टू 72 by 1 that is equal to 72, तो x की वैल्यू 72 हमने क्या माना है, ग्रैंडफादर की एज, तो ग्रैंडफादर एज इज s which is equal to 72 years, right? Now coming to the father side, what is the father side, it is equal to s minus 26. What is s, 72 minus 26, how much it is, 6, 5 minus 2 is 3, means 36 is the age of whose father says, sorry 46 is the age of fathers, whose fathers, Baichung's fathers. Now what is the age of Baichung, Baichung की एज क्या है, s minus 55, तो s की वैल्यू क्या आई है, 72 minus 55, 72 minus 55 is equal to 12 में से 5 गया 7, now we have 6 minus 5 is 1,
17 years is the age of Baichung, right? Now we have got the age of each of them. ग्रैंडफादर की एज 72 है, फादर की एज 46 है और बाइचुंग की खुद की एज है 17 years, right? Now start solving the next question. What is the next question? Question number 12. 15 years from now. तो 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी? एक्स होगी, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन रवि के प्रेजेंट एज के बारे में गिवन नहीं है. तो रवि प्रेजेंट एज इज एक्स, राइट? तो 15 years from now, अभी से 15 years later, ठीक है? फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ. तो कैसे करेंगे? अभी आपकी जो भी एज होगी, एक्स वाई जेड जो भी एज आपकी, तो अभी से 15 साल के बाद आपकी एज क्या होगी? तो व्हाट यू आर डूइंग कि जो अभी आपकी एज है उसमें आप क्या कर रहे हो? 15 ईयर्स ऐड कर रहे हो. तो रवि की अभी एज है एक्स, तो रवि की 15 साल के बाद एज कितनी होगी? उसमें ऐड कर देंगे 15. दिस इज द रवि's एज आफ्टर 15 ईयर्स. ओके? हाँ. व्हाट इज द क्वेश्चन? 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. तो रवि की जो एज है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? रवि की जो एज है 15 years के बाद, दैट इज इक्वल टू 4 times किया है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है. 4 times will be of his present age. What is the present age of Ravi? रवि की एज अभी 15 years के बाद क्या होगी? x plus 15. And what is the present age of Ravi? That is x, right? Then start solving this. तो ये 4x हो गया. तो x plus 15 is equal to 4x. सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर लो. तो इट इज 15 कांस्टेंट ओवर हियर, इसके आगे प्लस की साइन है, प्लस दे दिया हमने. देन इट इज 4x जिस साइड है उसी साइड है, जिस साइन के साथ है उसी साइन के साइड है. अब नाउ यू हैव टू टेक दिस x दैट साइड. तो इस साइड एक्स के आगे कौन सी साइन होगी? प्लस की. तो ये इक्वल्स टू किस साइड आएगा? तो माइनस की साइन. देन 15 इज इक्वल टू 3x, राइट? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग? 15/3. ओके, क्योंकि ये 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ. देन x इज इक्वल टू 15/3, 1 10 5 10. देन x की वैल्यू क्या आ गई? 5, राइट? तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है? क्या है? x है. दिस इज कमिंग एज 5 years. ओके? और वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, राइट? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. What is question number 13? A rational number is such that when you multiply it, what is the rational number? We don't know. Then we take that rational number as x. Okay? We have taken that rational number as x. It's such that when you multiply it by 5/2, you have to multiply the given rational number, which is x, by 5/2 and add 2/3 to the product. After multiplying, you are getting the product as 5/2 into x, right? And
दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, देन द रिजल्ट यू आर गेटिंग इज नोन एज प्रोडक्ट। जैसे देखो यहाँ 2 into 3 किया, ठीक है, तो यू आर गेटिंग 6, राइट। तो ये 6 क्या हो जाएगा, 6 को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर प्रोडक्ट यू आर गेटिंग, ठीक है। नाउ इसमें यू हैव टू ऐड 2/3 टू इट। प्रोडक्ट में हमने 2/3 ऐड किया। नाउ सो दैट यू विल गेट -7, then the result will be -7/12. okay, then they are asking what is the number. Now start solving this. तो ये क्या हो जाएगा, 5 into f, तो 5f/2 plus 2/3 is equal to -7/12. तो ये वेरिएबल है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसके साथ x नहीं है। तो 5f/2 -7/12, और ये इधर ये वाला नंबर प्लस साइन के साथ है, तो इस साइड आएगा तो माइनस साइन के साथ -2/3। ओके, देन 5f/2 इज इक्वल टू, दिस आर द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2, सब्सट्रैक्शन और एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। तो जब सब्सट्रैक्शन या एडिशन करना होता है रैशनल नंबर्स का, तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखते हैं। व्हाट आर द डिनोमिनेटर, वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। तो हियर वी आर गेटिंग दैट द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, मीन्स डिनोमिनेटर अलग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एलसीएम लेंगे। तो 12 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, what is the LCM, 3 into 4 into 1 into 1, then it is equal to 12. तो इसका LCM क्या है, 12 है, 12 is the LCM. Now 12 as it is लिखेंगे, और इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 12, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट with the numerator. What is the numerator? In numerator you have -7, right? Now what is the sign over here? It is sign, minus sign is there. Now again take 12, जो एलसीएम वाला पार्ट है, ठीक है, और इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसे किससे, न्यूमरेटर से। What is the numerator? 2 is the numerator, right? हाँ, then 5f/2 is equal to what, 12 से 12 1 टाइम, ठीक है। then 1 into -7, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 3 से 12 4 टाइम्स इंटू 2 गेट डिवाइडेड बाय 12. ओके, देन 5f/2 is equal to 7 into -1 is -7, -4 into 2 is -8, get divided by 12. okay, then -7 और -8, तो क्या करते हैं ऑपरेशन, व्हाट इज द ऑपरेशन ओवर हियर, द ऑपरेशन इज प्लस, तो 7 + 8 is 15, and what is the sign, minus, right? so -15 get divided by 12. okay, then 5f/2 is equal to -15/12. how will you solve it? ये 2 इधर इसके साथ डिवीजन में है, then 5f will be equal to -15/12 into 2. ओके, तो अब कैंसिल आउट करना है 2 से, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, 2 से 1 टाइम, ठीक है, 2 से 6 टाइम, देन 5f इज इक्वल टू -15/6. अब 3 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से 2 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स, है ना। देन व्हाट इज द आंसर, -5/2.
नाउ 5x की वैल्यू आ गई -5/2 और 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, देन हाउ विल यू गेट x -5/2 इंटू दिस विल कम इन डिवीजन, देन 1/, देखो कोई भी लेटर्स होता है, कोई भी नंबर्स होता है, उसके नीचे हमारा 1 छुपा होता है, तो जब ये डिवीजन में जाएगा तो 1/1/5 लिखा जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन में आया, डिवीजन में है ना, ये नीचे है। ठीक है, नाउ 5 से 1 10, 5 से 1 10, देन व्हाट इज योर आंसर? -1/2। -1/2 इज द रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर हमें पता करना था, व्हाट इज दैट? x विच इज इक्वल टू -1/2। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. What is the question number 14? It is telling that Lakshmi is a cashier in a bank. लक्ष्मी कोई कैशियर है बैंक में. She has currency notes of denomination 100, 50 and 10. मतलब उसके पास नोट्स हैं. किस के नोट्स हैं? ₹100 के नोट्स हैं, ₹50 के नोट्स हैं और ₹10 के नोट्स हैं. ठीक है. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स, और कितने नोट्स हैं, मतलब 100 के कितने नोट्स हैं, तो उनके रेशियो गिवन है. ओके, कितने रेशियो गिवन है? व्हाट इज द रेशियो गिवन? दे आर गिवन इन 2 get divided by 3 get divided by 5. Okay, then they have given the number of 100 rupees notes is, what are the number of actual number of 100 rupees notes? It is equal to, रेशियो में है इसीलिए 2s, 2 नहीं लिखेंगे, 2s होगा एक्चुअल नंबर्स निकालने के लिए. नंबर ऑफ ₹50 notes is 3s and number of ₹10 notes is 5s. Right? These are the number of notes. मतलब 100 रुपीज का नोट्स उसके पास 2s है, 50 रुपीज का नोट्स उसके पास 3s है और 10 रुपीज की नोट्स उसके पास 5s है. ठीक है. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख. टोटल कैश उसके पास कितने हैं? टोटल कैश इज इक्वल टू 4 लाख. ओके. 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो 100 के पास 100 की नोट लक्ष्मी के पास कितनी हो गई? 50 की नोट लक्ष्मी के पास कितनी हो गई? और 10 की नोट लक्ष्मी के पास कितनी है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. जब हम टोटल कैश की बात करते हैं लक्ष्मी के पास, दैट इज इक्वल टू 4 लाख. ठीक है. तो व्हाट आर द टोटल कैश ही है? तो 100 की नोट्स उसके पास कितनी है? 2s है. ओके. 50 की नोट्स कितनी है? 3s है. एंड 10 की नोट्स कितनी है? 5s है. राइट, विच इज इक्वल टू टोटल 4 लाख. राइट. नाउ मल्टीप्लाई दिस. 100 into 2s is 200s plus 50 into 3s is 150s plus 10 into 5s is 50s, which is equal to 4 lakh. Okay.
नाउ ये सारे वेरिएबल्स हैं, तो ऐड करो 200 प्लस 150 इज 350, 350 प्लस 50 इज 400, देन यू हैव 400 F इज इक्वल टू 4 लाख। तो F की क्या वैल्यू आ गई, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इक्वल्स टू के इस साइड आके डिवीजन में हो जाएगा 400, तो 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल, देन F की वैल्यू कितनी आ गई, और 4 से ये कितने टाइम्स 1 और कितने जीरोज हैं 1 2 3 जीरोज, राइट। देन F की वैल्यू आ रही है 1000, राइट। F की कितनी वैल्यू आ गई 1000, हाँ। तो नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 2F, 2 इंटू F की कितनी वैल्यू है 100, तो कितनी हो गई 1000, तो F, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, दैट इज 2000, मतलब 2000 उसके पास 100 के नोट्स हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, which is equal to 3F. Now what is the value of F you have 1000, then it is 3000, means number of 50 rupees notes is 3000, उसके पास 3050 के नोट्स हैं। फिर नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स which is equal to 5F, तो 5 और F की वैल्यू हो गई 1000, तो टोटल नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स इज 5000, ठीक है। तो ये सारे आंसर हो गए कि 100 के नोट्स कितने हैं 2000 हैं, 50 के नोट्स कितने हैं 3000 हैं, और 10 के नोट्स कितने हैं 5000 हैं, और इन सबको मिला के टोटल उसके पास लक्ष्मी के पास कैश कितना है 4 लाख है, समझ गए। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आई टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स, टोटल कैश हमारे पास कितना है, द टोटल कैश इन द क्वेश्चन नंबर 15 इज रुपीज 300, राइट, हाँ। जिसमें डिनोमिनेशन मीन्स इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, मतलब ये 300 में कौन कौन से कॉइन्स हैं, ₹1 के कॉइन्स हैं, ₹2 के कॉइन्स हैं, एंड ₹5 के कॉइन्स हैं, ओके। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो लेट द नंबर ऑफ, किसको X मानेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ₹5 कॉइन्स को मानेंगे, बिकॉज ₹5 कॉइन्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ₹2 कॉइन्स के बारे में गिवन है कि वो 3 टाइम्स है, ठीक है, किसके ₹5 कॉइन्स के, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू X, ओके। Then what about the ₹2 coins? Therefore, according to question, the number of ₹2 coins is equal to 3 times the, means 3 times बोला गया ना, इसलिए 3 into 3 times the number of coins of 5 rupees. तो what are the number of coins of 5 rupees? How much it is? F, then 3F. तो जो 2 रुपीज के कॉइन्स हैं वो नंबर्स में कितने हैं 3F हैं, राइट, हाँ। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अब टोटल नंबर कितने हैं कॉइन्स के,
कॉइन्स के टोटल नंबर हैं 160. ओके, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी. तो सारे डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास. सो 5 रुपीज के कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, एफ हैं. द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इज 3f. व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1? It is equal to, we don't know. Okay, then we have to calculate the number of coins of ₹1, और इन सबको मिला के जो मेरे पास टोटल कॉइन्स है वो 160 हो रही है. ओके, देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इज इक्वल टू, इधर 160 है राइट, और ये x प्लस 3x इज 4x. तो ये प्लस में आ जाएगा ना 4x, और इसको हम इक्वल्स टू के इस साइड लाएंगे तो इट इज इक्वल टू -4x राइट. देन 160 माइनस 4x, ये नंबर होंगे किसके, 1 रुपीज कॉइन्स के. ओके, एंड वी हैव द टोटल कैश एज ₹300 राइट. तो टोटल कैश वी हैव इज इक्वल टू ₹300. तो टोटल कैश, तो एफ इज द 5 रुपीज कॉइन. तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2? वी हैव 3f, and now we have to multiply it with ₹2, क्योंकि 2 रुपीज का कॉइन 3f है. प्लस अगेन you have to multiply how many number of coins of ₹1 you have 160 minus 4f into कितने के कॉइन्स हैं, 1 रुपीज के. ओके, देन मल्टीप्लाई इट विथ 1. व्हाट इज द टोटल कैश यू हैव, 300. ठीक है, चलो अब सॉल्व करो. देन x into 5 is 5f. You have plus sign, then I have written the plus sign over here. Then 3f into 2 is 6f. Again you have plus sign. Then 1 into 160 minus 4f. Then 1 से किसी भी नंबर्स को, किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे you will get the same. Then you are getting here the same 160 minus 4f. This is equal to 300, right? Now 5f plus 6f 11f, और इसके आगे क्या है, माइनस. तो 11f प्लस में और उसमें से माइनस कितना करना है, 4f. तो 11f minus 4f is 7f. 7f plus 160, this is equal to 300. Then 7f is equal to 300 minus 160 is what? Isn't plus in this side. Then if it go to the RHS side, then it is equal to minus 160. Then 7f is equal to 300 minus 160 is 140. Then f की क्या वैल्यू हो जाएगी, 140/7. देन 7 से 1 टाइम और 7 से 20 टाइम. तो f की वैल्यू कितनी हो गई, 20. ओके, तो x हमने क्या माना है, व्हाट इज f? दैट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ, दैट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5. ठीक है, तो ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, ₹5 के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं. देन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ f as 20. ठीक है,
तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 20. देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन? व्हाट इज द नंबर? इट इज इक्वल टू 3s. देन 3s की वैल्यू कितनी आ रही है? 20. देन इट इज इक्वल टू 60. नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ coins of denomination of ₹1, which is equal to 160, which is equal to 160 minus 4s. तो 164 s की कितनी वैल्यू आ रही है? 20. देन 160 minus 80, this is equal to 80. तो 80 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं. 80 नंबर्स 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16? What is the question number 16? Question number 16 में बोला जा रहा है the organizer of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100. जो विनर होगा उसे कितना प्राइज मिलेगा? ₹100 का. ठीक है. and the participant who does not win gets ₹25. और जो पार्टिसिपेंट होगा विल गेट ₹25. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बस पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 25 रुपीज़ मिलेगा. अगर आप पार्टिसिपेट करके विनर बन जाते हो देन यू विल गेट ₹100. राइट. हाँ. द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000. जो टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो कितनी है? ₹3000. 3000 रुपीज़ दे दिया गया, जिसमें से कुछ विनर्स को दिया गया और कुछ पार्टिसिपेंट्स को दिया गया. ठीक है. वी डोंट नो हाउ मेनी विनर्स वेर देयर who will get the ₹100 and how many participants were there who will get ₹25. ठीक है. हाँ. then find the number of the winners if the total number of the participant is 63. अब देखो 63 क्या है? टोटल पार्टिसिपेंट है. ठीक है. इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी में से तो विनर होगा, है ना. देन लेट जो विनर हुए हैं विनर डी एस. विनर को हमने क्या मान लिया? एस मान लिया. जिन्हें कितना मिला है? विनर विल गेट ₹100. मतलब एस लोगों को कितना मिला? 100 रुपीज़ मिला. ठीक है. अब पार्टिसिपेंट में से ही विनर होंगे. ठीक है. तो दोज हु विल गेट ₹25, तो उनकी नंबर कितनी होगी? दोज हु आर गेटिंग ₹25. तो 63 माइनस एस. ठीक है. जिनको कितना मिला है? ₹25 मिला है. क्यों? कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. अब देखो 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था किसी गेम में. ठीक है. इसमें से कुछ विनर्स हो गए जिसको हमने एस मान लिया. तो एस आर द नंबर्स हु आर विनर्स, है ना. एस आर द नंबर्स हु आर विनर्स. देन हाउ मच आर द रिमेनिंग? हाउ मेनी आर द रिमेनिंग? तो 63 minus s. These are the remaining numbers who are not winners. Right? These are the people who are not winners. ठीक है. हाँ. जो विनर्स है उन्हें कितना मिला? ₹100. और जो नॉन विनर्स है उन्हें कितना मिला? ₹25. तो कितने को 100 रुपीज़ मिला है?
एक्स लोगों को, ठीक है, एक्स माना है ना हमने, एक्स लोगों को कितना मिला है 100 रुपीज़, देन 100 इंटू एक्स, और कितने लोगों को 25 मिला है, 25 रुपीज़ किन्हें मिला है, तो 63 माइनस एक्स लोगों को, और टोटल जो प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो कितनी है 3000 है, ठीक है। हाँ, देन हाउ मच इट इज 100 एक्स प्लस, अब देखो इधर 25, ये वाला जो 25 है 25 इंटू दिस टर्म, देन 25 क्या होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 25 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 25 विथ 63, तो 25 इंटू 63 कितना हो गया 75, और इट इज 150, 1575 माइनस 25, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके आगे 25 इंटू माइनस एक्स, व्हाट इज द आंसर माइनस 25x, दिस इज इक्वल टू 3000, राइट। देन you have 100 here and you have 25 over here, 25x, and this is 100x, then 100x minus 25 is 75x plus 1575, this is equal to 3000, then 75x will be equal to 3000, और ये इधर प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा 1575, then 75x will be equal to 5, 9 minus 7 is 2, this is 9, 9 minus 5 is 4, and this is 2, 2 minus 1 is 1, then x is equal to 1425, get divided by 75, then how many times 1425 get divided by 75, then 75 से 1 time 7, and it is 6, and this one is your 5, then 9 times 9 times, हाँ, then 75 से this one is 9 times, okay, then x is equal to 9, right, x की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है, what are the number of winners you have, we have taken the number of winners as x, this is 9, and what are the number of participants, then we have number of winners which is equal to f, this is 9, and number of non-winners is equal to 63 minus f, then 63 minus 9, this is equal to 54, right. 54 are the persons which are non-winners and who get rupees 25, and 9 are the persons who are winners who will get rupees 100, okay. समझ आ गया। See here, 63 are the total person who have participated, जब participate करेंगे तभी तो winner होंगे, तो ये participate किया गेम में, ठीक है, इतने लोग गए गेम में participate करने,
और इसमें से एफ लोग क्या हो गए, विनर हो गए। तो कितने लोग बचे जो नॉन विनर हुए, तो उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो 63 में से माइनस कर दिया मैंने एफ, तो ये एफ क्या है, इतने लोग विनर्स हैं। ठीक है, और इतने लोग क्या हो गए, नॉन विनर्स हो गए। ये लोग पार्टिसिपेट तो किए गेम में, लेकिन ये लोग गेम को विन नहीं किए। कितने लोग विन किए, एफ लोग विन किए। और जो एफ लोग विन किए उन्हें कितने रुपीज़ का अमाउंट दिया गया, 100 रुपीज़ का। और जो लोग विन नहीं हुए हैं, जो लोग नॉन विनर्स हैं, उन्हें कितने रुपीज़ का अमाउंट दिया गया, 25 रुपीज़ का। और टोटल जो अमाउंट है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3000। देन हाउ विल यू गेट दिस 3000। तो कितने लोगों को 100 रुपीज़ मिला है, तो 100 रुपीज़ जितने लोगों को मिला है, 100 इंटू एफ, मतलब एफ लोगों को 100 रुपीज़ मिला है। प्लस करेंगे कितने लोगों को 25 रुपीज़ मिला है, तो 25 इंटू 63 माइनस एफ इज इक्वल टू 3000। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट कि f इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो 9 आर द नंबर ऑफ विनर्स। एंड जब हम लोग 9 को माइनस कर देंगे, 9 विनर्स है। ठीक है, 9 लोग 63 लोग गए थे, जिसमें से 9 लोग विनर्स हो गए, तो कितने बच गए, 54 लोग जो कि नॉन विनर है, जिनको कि 25 रुपीज़ मिला है। गॉट इट, ओके।